Students, this is your chapter 14th of science, that is electric current and its effects. In previous lecture, we already discussed about the topic symbol of electric components, and today we will discuss about magnetic effect of electric current. So let's start magnetic effect of electric current. So start with activity 14.5. This is your picture, image 14.17 figure you can see. So let's start with activity 14.5. Take the cardboard tray from inside a discarded matchbox. Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free ends of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 14.7. So student, you can see this is your battery, this is your bulb, and this is your matchbox, which are wrapped with a electric wire. You can see this is the wrapping of electric wire, and you can see this is the compass of black color. You can see, just a minute, this is your compass. You can see this is your compass. Okay, note the direction in which the compass needle is pointing. You have to find out the direction in which the compass needle is pointing. Bring a bar magnet near the compass needle. You have to bring a bar magnet near the compass needle and observe what happens. Now, while watching the compass needle carefully, move the switch to the on position. So, firstly, when you are doing this activity, you have to watching the compass. During that, move the switch to on position. What do you observe? Does the compass needle deflect or move the switch back to the off position? Does the compass needle come back to its initial position? आपको करना क्या है, एक कंपास को आपको लेके जाना है. कहाँ पे लेके जाना है आपको कंपास को? While watching the compass needle, carefully move the switch to on position. जब भी आपको बार मैग्नेट का जो कंपास आपको दिख रहा था, ये इसको जब आप ऑन करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो क्या ये डिफ्लेक्ट करता है, या जब आप ऑफ पोजीशन पे ले जाएंगे तो क्या ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है? अगर हम देखें आता है, इसको हमको फाइंड आउट करना है. रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ few times. Repeat the experiment a few times. What does this experiment indicate? इसको आपको रिपीट करना है और आपको पता करना है कि एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है. We know that the needle of a compass is a teeny magnet which points is north south direction. आपको पता है कि जो आपका नीडल है कंपास का, ये एक टीनी मैग्नेट है और उसके पॉइंट्स जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है. व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, जब हम मैग्नेट को इसके क्लोज लेके जाएंगे, द नीडल गेट्स डिफ्लेक्ट. जो नीडल है वो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी. वी हैव आल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लो इन अ नियर बाई वायर. और अगर हम जो वायर है उसके नियर बाई भी अगर करंट को फ्लो करते हैं और कंपास को ले जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? वी हैव आल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन नियर बाई वायर. अगर इस वायर के नियर बाई हम करंट को फ्लो करते हैं तो आपका जो कंपास है वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा. व्हेन द करंट यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन. क्या आप दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर सकते हैं? When the current flow through a wire, does the wire behave like a magnet? क्या वो when the current flows through a wire, जब भी हम करंट को वायर
के पास थ्रू करते हैं, उस करंट को पास करते हैं, तो क्या वो वायर जो रैप्ड है वो बिहेव करेगा लाइक अ मैग्नेट? दिस इज वॉट from here we can see, this is what a scientist called Hans Christian Ørsted, this is the scientist also wondered, he was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने, और ये फाइंड किया, ही वॉज फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, पहले व्यक्ति जिन्होंने कंपास को नोटिस किया एवरी टाइम द करेंट वाज पास थ्रू द वायर, करंट को पास करके वायर के पास। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अगर इलेक्ट्रिक करंट हम वायर के पास से पास करते हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ मैग्नेट। दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यही आपका क्या बोला जाएगा, क्या कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट, इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं मैग्नेट्स को बनाने में। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? लेट्स ट्राई इट आउट। This is your an electromagnet. This is your electromagnet. Remember not to switch on the current for more than a few seconds at a time. Remember not to switch on the current for more than a few seconds at a time. ज़्यादा समय के लिए आपको करंट नहीं पास करना। The electromagnet weakens the cell quickly if left connected. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, सेल क्विकली इफ लेफ्ट करने अगर हम छोड़ देते हैं तो वो वीकेंड हो जाएगा। तो रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स से ज़्यादा आपको स्विच ऑन नहीं करना है। रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड एट अ टाइम। द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकेंस द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज द figure of the electromagnet. Okay, this is the battery and this is the wire which are wrapped. So let's start electromagnet. Activity 14.6 says that take around 75 centimeter long piece of insulated plastic or cloth covered or enameled. Okay, so we can take plastic or cloth covered or enameled flexible wire and an iron nail, say about 6 to 8 centimeter long. Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil, as you seen in picture. Connect the free ends of the wire to the terminals of a cell through a switch as shown in figure 14.9. So you can see this figure of an electromagnet. This is the nail which are wrapped and this is the battery. Through a switch and also switch are connected there. Place some pins on or near the end of the nails. Now switch on the current. What happens? Do the pins cling to the tip of the nail? Switch off the current. Are the pins still clinging to the end of the nail? You have to take the insulated or plastics covered enamel flexible wire और उस पर आपको नेल्स रखने हैं, उसको रैप्ड करना है पिंस को। अब आपको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद आप देखिए कि क्या वो जो पिंस है वो उस पर चिपक के रहती है, उस पर पड़ी रहती है जब हम करंट को ऑन करते हैं। Are the pins clinging to the ends of the nail? The coil in the above activity behaves like a magnet. जो coil है एक्टिविटी में, जो coil wrapped है वो कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा जब भी हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट को इससे फ्लो करते हैं। When the electric current is switched off, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर देंगे the coil generally loses its magnetism. So obvious, ये और क्या लूज़ कर देगा? अपनी मैग्नेटिज्म की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है वो उसको लॉस कर देगा अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं, करंट को
नहीं फ्लो करते हैं, करंट को फ्लो करना बंद कर देते हैं। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग and can lift very heavy loads. The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं and they can also lift a very loads. Do you remember the crane about which you read in chapter 13 of class 6th? The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it. जो क्रेन होता है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड होते हैं और ये कैपेबल होते हैं हाई लोड को पुल करने में। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। जो जंक है, जो कूड़े करकट होते हैं, उसमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वहाँ से सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉल इन द आई। आपकी आंखों में अगर एक्सीडेंटली कोई भी मटेरियल या कोई भी आयरन का पीस कुछ भी गिर जाता है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से डॉक्टर इसको वहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मेनी टॉयज़ आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम। बहुत सारे टॉयज़ हैं जिनके पास खुद का अंदर उनके इनसाइड मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, अटैच होते हैं। नाउ द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। स्टूडेंट, वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक बेल को, हमने देखा है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। ओके, चलो हम देखते हैं, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सो स्टूडेंट, फिगर 14.20 circuits of an electric bell. So the circuit of an electric bell, it consists of a coil of wire wounded of an iron piece. एक coil होती है वायर की जो कि आयरन पीस पे wounded होती है, लिपटी होती है। The coil acts as an electromagnet. जो coil है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तरह एक्ट करेगा। An iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet. एक आयरन होता है हैमर के साथ जो कि एक एंड पे क्लोज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इन द आयरन स्ट्रिप। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज़ कनेक्टेड विद द स्क्रू, जब भी आयरन स्ट्रिप को हम कॉन्टैक्ट में करते हैं स्क्रू के, द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल विच हैज़ बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉइल में करंट पास होगी और वो एज कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप इन द ये क्या करेगा, आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस साउंड। और ये तुरंत जो गोंग है बेल का उस पर स्ट्राइक करेगा और अब साउंड प्रोड्यूस होने लगेगी। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also break the circuits. कैसे, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को पुल करेंगे आयरन स्ट्रिप से, ये ब्रेक कर सकती है सर्किट को। द करंट थ्रू द कॉइल्स स्टॉप फ्लोइंग। करंट जो फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या तब भी आपकी जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नेचर की होगी। द कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही करंट की सप्लाई आप बंद करेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तरह शो नहीं, प्रॉपर्टी नहीं शो करेगी। इट नो लॉन्गर अटैक्स देयर ऑन स्ट्रिप्स। द आयरन स्ट्रिप्स कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जो आपकी, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तक बिहेव नहीं करेगा तो जो आपकी आयरन की स्ट्रिप है वो नीचे चली जाएगी, वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। दिस कंप्लीट्स द सर्किट। The current flows in the coil and the hammer strike the gong again. This process is repeated in quick succession. The hammer strike the young gong every time the circuit is completed. This is how the bell ring. So this is the whole process of your electric bell, how it produces the sounds. So dear student, it is all about your chapter 14. Okay, thank you.